Assalamu alaikum, class 7th. Students, we have completed our chapter number 2, respiratory system. And after the reading and explanation, I hope you can answer these questions very easily, which are provided at the back of your chapter number 2. Question number 1 is define respiration. Only you have to provide the definition of the respiration for this answer. Look at this. Here we have the definition of respiration. Respiration is a process of releasing energy by the use of food and oxygen. Carbon dioxide, water vapors and energy released as a result of respiration. This is the definition of respiration. Part B of the answer to the following question is, name the organs which are associated with respiration. Can you answer? First one is nasal cavity. Yes, pharynx, larynx, trachea, bronchi, then lungs and diaphragm. Yes, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs. Oops, I missed the alveoli, then the diaphragm. ठीक हो गया. ये 8 ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेजर ऑर्गन्स कहलाते हैं. सी पार्ट देखिए, विच सब्सटेंसेस आर रिएक्टेंट इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड नेम द सब्सटेंसेस विच आर प्रोडक्ट्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन के ही प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स हमने बताने हैं. तो रिएक्टेंट्स होते हैं जो इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर आते हैं और रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं. मतलब इक्वेशन की वो here we have aerobic respiration and the equation for aerobic respiration is glucose plus oxygen, and glucose plus oxygen here are reactants and carbon dioxide plus water plus energy are the products, and you have to answer both the question from here. Reactants of aerobic respiration are glucose and oxygen, and the answer of second question is products of aerobic respiration are carbon dioxide, water and energy. How the reactants and products are moved around the body. कैसे reactant and product body में move करते हैं? जी, we can write reactants and products can move around the body with the help of respiratory system. Next question is, why do all organisms respire? क्यों तमाम जानदार जो हैं वो respire करते हैं? देखिए यहाँ पर है, why do organisms respire? Living organisms need energy to move, excrete, grow, reproduce and maintain them. So we can say all of these processes can be done with the help of energy, and this energy they get from respiration. ये तमाम जो उनको एनर्जी चाहिए डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए वो कहाँ से आती है? रेस्पिरेशन से. सो ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी. ठीक हो गया. इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू मूव, एक्सक्रीट, ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड मेंटेन देम, एंड दिस एनर्जी दे गेट फ्रॉम रेस्पिरेशन. सो ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी. ठीक हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. राइट इक्वेशंस फॉर बोथ. लुक एट दिस. हियर वी हैव comparison of aerobic and anaerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन और अनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस के लिए हमें दरमियान में लाइन लगा के जैसे बुक में दिखा ऐसे लिखना पड़ेगा, और डिफरेंसेस जिसके 3 दिए हैं वो तीनों लिखेंगे. फर्स्ट इज ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी इन दिस प्रोसेस. एरोबिक के लिए, एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन इज़ नॉट नेसेसरी. याद है आप लोगों को? यस. ग्लूकोज इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Whereas in aerobic respiration and anaerobic respiration, glucose is broken into lactic acid and energy. ये 2 difference. Third one is it occurs in all organisms. Aerobic respiration occurs in all organisms, while anaerobic respiration it mostly occurs in lower organisms and in the muscles of higher organisms during heavy activities. ठीक हो गया. और दूसरा पार्ट था कि उसके अपने साथ में क्या लिखनी है? इक्वेशंस. जी,
एरोबिक रेस्पिरेशन के नीचे उसकी इक्वेशन लिखेंगे और एनारोबिक के नीचे उसकी इक्वेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, एंड द इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज एरो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये हो गया आपका लॉन्ग क्वेश्चन। वाई इट इज़ बेटर टू ब्रीथ थ्रू योर नोज देन योर माउथ। जी, नोज से सांस लेना क्यों बेहतर है एज कम्पेयर टू माउथ के। यू कैन राइट इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट बिकॉज नोज हैज़ टू nostrils which are lined with tiny nasal hair, cilia and mucus glands. Cilia and mucus line the nasal cavity and traps bacteria and foreign particles that enter in through the nose. In addition, air that passes through the nasal cavity is humidified and moistened. ठीक हो गया, क्योंकि नेज़ल कैविटी के अंदर सीलिया भी हैं और हेयर वो ग्लैंड्स भी हैं, म्यूकस ग्लैंड, जिसकी वजह से जो फॉरेन पार्टिकल्स सांस के साथ या हवा के अंदर जाते हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं और इसके नतीजे में क्या होता है, साफ़ हवा हमारे अंदर जाती है। जबकि हम जब मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होगा, सब फॉरेन पार्टिकल्स एंड जो भी हैं गंद बला होगा साथ हवा के, वो भी हमारे मुंह के ज़रिए अंदर, क्योंकि मुंह में तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो उसको ट्रैप कर लेंगे। ठीक हो गया, इसलिए हमारे गले में खराश और खांसी हो सकती है अगर हम किससे सांस लेंगे, मुंह से। ठीक हो गया, तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या लिखेंगे, बिकॉज नोज हैज़ टू nostrils which are lined with tiny nasal hair, cilia and mucus glands, so that we have to, it is better to breathe through your nose. ठीक है स्टूडेंट, ये होगी हमारे आंसर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ आंसर क्वेश्चन ऐसे दिखाती हूँ जो हम क्रिएटिव राइटिंग के लिए बना सकते हैं। लुक एट हियर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर, नेम देम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वन मोर क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नेसेसरी। ऑक्सीजन इज नेसेसरी इन, यस, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। गिव द इक्वेशन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन की अलग अलग से वो इक्वेशंस दे सकते हैं, जो भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको बताई। जी, एरोबिक की रेस्पिरेशन की क्या होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज सिंपली जो है वो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में क्या हो जाएगा, जी हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा। Just like that you can make another question, from where air enters into the body। एयर हवा कहाँ से जिस्म में दाखिल होती है, air enters into the body through an opening called nose। Beside nose, from where air can enter into the lungs। Beside the nose, air can enter into the lungs through the mouth। What is another name of larynx? Another name of larynx is voice box। जी स्टूडेंट, जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए वैसे आप लोग क्रिएटिव राइटिंग में फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स एंड मैक द कॉलम डिफरेंट इसकी जो हैं एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने ये काम खुद से करना है और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता दिए आप लिखें अपनी नोटबुक में, याद करें और इसके ऑब्जेक्टिव जो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।